students, I am back again with next mathematical tool, that is trigonometry. In last lecture we have discussed about the three mathematical tools. Those three mathematical tools were algebra, graph and angle. So this is fourth mathematical tool, and this tool is useful for you in your mathematics also. सेम चीज़ आपने मैथमेटिक्स में भी करनी है, जो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का करने जा रही हूँ. सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री you have studied about these t ratios, sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. These all are called t ratios, trigonometric ratios. You know the basic relations about these t ratios, that is sin theta over cos theta is tan theta, then sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. So these are the basic relations. You might be knowing about the other trigonometric formulas also. So यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, that is totally new for you. So that is the concept is called quadrant. So what is quadrant? Quadrant means 1/4. So if you plot two mutually perpendicular lines on a paper, एक पेपर लेके अगर आप उसमें ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो, so then your paper is divided into 4 parts. So each part is called quadrant. तो यहाँ पे अगर मैं इसको x एक्सिस बोलती हूँ, this is minus x, this is y, this is minus y. So now you have to study the relation of trigonometric ratios with these quadrants. So उसके लिए हम क्या करते हैं, we consider a line OP which is making angle theta with x axis and drop a perpendicular PM on this line. So this is a perpendicular. So what we are going to do, we will check the all trigonometric ratios जो आपके पास गिवन है. आपने क्या देखना है कि इनमें से कौन सी किस वाले क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. So in the all four quadrants we will check for all the trigonometric ratios. तो हम फर्स्ट से शुरू करेंगे एंड चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर इन 6 की रेशियो में से कौन सी पॉजिटिव आएगी और कौन सी नेगेटिव आएगी. और पॉजिटिव और नेगेटिव जो बोले उसका क्या मीनिंग है वो आपको अभी पता चल जाएगा. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो क्वाड्रेंट 1. In case of quadrant 1, if I take sin theta, my sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. You know the formula, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is PM and hypotenuse is OP. So when you divide, this is positive and this is also positive. So your sin theta is positive in first quadrant. Now check for the second, cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. So base is OM over OP. So again OM, this is positive x axis, so OM is positive. This is positive y axis, so
OP is also positive, so both are positive. So cos theta is also positive. So now we check for tan theta. Since tan theta is a ratio of sine and cos, and if both are positive, tan theta is also positive. Similarly, we check for the other t ratios. अगर sin theta पॉजिटिव है तो आपका cosecant theta जो है this is also positive, and if cos theta is positive, secant theta is also positive. If tan theta is positive, cot theta is also positive. So in the first quadrant we can say that all the t ratios are positive. So all means sin, cos, tan, cosecant, secant and cot. All the 6 are positive in quadrant 1. Now we come to the second quadrant. So in quadrant second, in this case we choose a line OP like this. ठीक है, हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं. So this is PM. So now this is angle theta and this is perpendicular. PM is perpendicular. So in this case also, if we take sin theta is PM over OP. PM over OP. So now this is positive y-axis side. So PM is positive. OP is also positive. So sin theta is positive. Then cos theta. Cos theta is OM over OP. Now you can see that this is origin O and this side is negative x-axis. So OM is negative and OP is positive. So total cos theta is negative. So it means if we take ratio of both sin over cos, अगर एक negative हो गया तो tan theta is also negative. So similarly you can check for other t ratios. If sin is positive, cosecant is positive. If cos is positive negative, then secant theta is also negative. And if tan theta is negative, then cot theta is also negative. So it means in this quadrant only sin theta and cosecant theta, these both are positive. All other t ratios are negative. So we can say that sin is positive in this quadrant. अगर sin positive है तो obviously cosecant तो positive होगा. So second quadrant हो गया. Now we come to the third quadrant. In case of third quadrant, again we take this line OP and draw perpendicular, and this is angle theta. So in this case quadrant 3, in third quadrant again sin theta is ये वाला हो गया आपका perpendicular. sin theta is PM over OP. Now in this case PM is along the negative y-axis. जो origin के इस side है, this is negative y-axis. So PM is negative and OP is positive. So sin theta is negative. Cos theta is OM over OP. Now OM is again negative. So cos theta is negative and tan theta is sin over cos. So if both are negative, tan theta is positive. So if sin theta is negative, this implies cosecant theta is also negative. If cos theta is negative, secant theta is also negative. If tan theta is positive, then this implies that cot theta is also positive. So we can say that in the third quadrant only tan theta and cot theta are positive. All other t ratios are negative. So t
quadrant 4. In case of fourth quadrant, we again take this line OP and draw perpendicular on x axis. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब परपेंडिकुलर आप जो ड्रॉ कर रहे हो, एक चीज याद रखना कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द एक्स एक्सिस. So again in this triangle OPM, sin theta is perpendicular upon PM over OP. Now in this case PM is negative because this is along the negative axis. So sin theta is negative, cos theta OM over OP. So cos theta is also OM over OP. OM is positive, OP is also positive, so cos theta is positive. And tan theta is ratio of sin theta and cos theta. So if one is negative, tan theta is also negative. So it means in this quadrant, if sin is negative, this implies cosecant is also negative. If cos is positive, secant theta is positive. And if tan is negative, cot theta is also negative. So in the fourth quadrant we can say that all are negative except cos theta and secant theta. So we can write C. So you can remember this thing with the formula. You can say A यहाँ पे all negative है, all, S school, T 2, C college. All school to college. ओके जी. सो दिस इज डन. अब क्वाड्रेंट में आपने ये चीज़ें जो चेक करी है कि ये साइन पॉजिटिव है, टैन कॉस पॉजिटिव है, इस चीज़ को यूज़ कहाँ पे करना है, आप वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आपको पता है कि अब ये आपने करा होगा कि साइन 0 से लेके 0, 30, 45, 60 ये टेबल आपको याद होगा. फॉर दीज एंगल्स यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टेन, ठीक है, ऑल द टी रेशियोज यू रिमेंबर फॉर ऑल दीज एंगल्स अप टू 90 डिग्री. So what if you get an angle greater than 90 degree? Suppose you have to find value of sin 120 degree. 90 डिग्री तो ठीक है, 0 से लेके ये 0 एंगल है यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन दिस इज 360. 0 एंड 360 एक सर्कल के बाद सेम जगह पे आ जाएंगे दोनों. सो इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस टी रेशियो sin 120, सो अगेन यहाँ जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, दैट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस टी रेशियो, दिस क्वाड्रेंट फॉर्मूला. तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा. कैसे होगा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. उसके पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एलाइड एंगल्स. What are allied angles? So allied angles क्या होते हैं? Allied angles are the angles whose sum or difference is equal to 90 degree or a multiple of 90 degree or sometimes 0. अगर आपके पास दो एंगल है थीटा 1 एंड थीटा 2, उनका सम और डिफरेंस 90 और इंटीग्रल एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 अगर हो, और समटाइम्स अगर उनका जो एंगल का सम है वो आपका 0 हो जाए. तो जो इसमें से जो भी कंडीशन एंगल्स, अगर कोई भी कंडीशन फॉलो करेंगे देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कुछ एंगल लिखती हूँ 90, 120, 190 छोड़ दो, 30, 150, then 210, 240, 300,
330. Okay, so now we choose pair of angles. अगर मैं यहाँ पे ये दोनों एंगल ले लूँ, so sum of these is 90. ठीक है, it is integral multiple 90, so these are allied angles. If I choose these two angles 60 and 120, now difference of these two is 60, but if I add these two, the summation is 180, so 180 is a multiple of 90, so these two are also allied angles. If I choose these two 150 and 240, so again difference of these two angles is 90 degree. These are allied angles. And you can take 30 and 120, difference is 90, so all these angles are called allied angles. So जो sin 120 का अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो जैसे आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर आपके पास एंगल -30 डिग्री है या -60 डिग्री है, तो सम ऑफ दीज टू इज 0, so these both are also allied angles, these are allied angles. ठीक है, so अब आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द T ratio of an angle which is greater than 90 degree. So how to find that? तो जो आपकी T ratios हैं, how T ratios इंटरचेंज, ये चीज आप दो याद कर लो, एंड व्हेन इंटरचेंज. ठीक है, टी रेशियोज आपकी कैसे चेंज होती है? साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है. ठीक है, सीकेंड जो है ये कोसीकेंड में चेंज हो जाता है. तो कब इंटरचेंज होती है? अगर आपका थीटा जो है, आपका जो एंगल आ रहा है, अगर 90 है या 270 है. सेकेंड इज इफ 180 है और 360 है, देन दिस चेंज इज नॉट पॉसिबल. साइन टू कॉस, ये मैंने कैसे लिखा है, अब देखो ये यूज कैसे करना है क्वाड्रेंट फॉर्मूला. अगर आपको साइन 90 प्लस थीटा निकालना है और cos 90 प्लस थीटा फाइंड करना है और tan 90 प्लस थीटा चेंज करना है, तो ये वाइस वर्सा है, दोनों साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे. ठीक है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं. व्हेन एंगल इज 90, अब देखो यहाँ पे ये एंगल है, इफ दिस एंगल इज 90 देन एंड यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा अप टू 90 डिग्री इज ओके, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द टेबल, बट 90 प्लस थीटा हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो साइन 90 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और आपको क्वाड्रेंट भी साथ में देखना है. 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका देखना है इस साइड वाले का, तो साइन पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, सो यू विल राइट साइन 90 प्लस 30. So sin 90 plus 30 means cos 30. So sin 120 की जो वैल्यू आएगी cos 30 की वैल्यू को इक्वल है, और cos 30 की वैल्यू आपको टेबल से पता है. तो यहाँ से यहाँ पे आप जो टेबल में वैल्यूज आपको पता है आपको 90, उसी वैल्यू को यूज करके आप जो मोर देन 90 डिग्री एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो सिमिलरली cos 90 प्लस थीटा है, cos 90, अब 90 है तो cos हो जाएगा साइन थीटा, और cos है एंड 90 प्लस थीटा मींस यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव. सो cos इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने cos 150 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? cos 90 प्लस 60, तो 90 है तो साइन हो जाएगा
एंड सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, और थीटा थीटा आपका 60 है, सो कॉस 150 इज इक्वल टू माइनस साइन 60। देन tan आ गया, तो ये हो गया tan 90 प्लस थीटा मीन्स यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन आएगा क्योंकि tan नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan कॉट हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने निकालना है सपोज 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा, so now your angle is 180 plus theta means you are in the, ये 180 हो गया, and 180 plus theta means you are now in the third quadrant, and in third quadrant if this angle is 180, देखो 180 है तो इंटरचेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 और 270 एंगल है अगर यहाँ पे, तो ही साइन कॉस, ये वाला इंटरचेंज जो हो रहा है साइन कॉस tan कॉट सीकेंट सीकेंट, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस एंगल इज 90 और 270। अगर 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा थीटा, और साथ में हमने लिखा है साइन पॉजिटिव आएगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा मींस यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव क्योंकि सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो माइनस साइन आ जाएगा। cos 180 प्लस थीटा, cos you are in the third quadrant and in third quadrant cos is negative, and 180 है तो cos का cos थीटा ही आएगा, and cos नेगेटिव है तो माइनस साइन। सिमिलरली tan 180 प्लस थीटा, in third quadrant tan is positive so plus tan थीटा, tan का tan रहेगा क्योंकि 180 है। नेक्स्ट थर्ड कर लेते हैं, अगर आपका एंगल 270 है तो साइन 270 प्लस थीटा, सो 270 cos 270 plus theta and tan 270 plus theta, तो इनका क्या वैल्यू आएगा साइन 270 एंगल हो गया, ये तीन क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे, 270 हो गया प्लस थीटा मींस नाउ यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस इज पॉजिटिव, साइन एंड tan आर नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा थीटा, ठीक है, और cos है जो cos का साइन हो जाएगा, एंड क्योंकि cos इसमें पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, एंड अगेन tan नेगेटिव है तो tan का cot हो जाएगा और माइनस साइन आएगा। सो इट मीन्स ये आपका ये वैल्यूज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने निकालना है साइन 300 डिग्री, तो यू कैन राइट इट एज साइन 270 प्लस 30, so 270 means cos and theta is 30 degree, and now you are in the fourth quadrant, 270 plus theta and sin is negative तो माइनस आएगा। सिर्फ इसको देखना है कि ये वाला जो है टी रेशियो ये उस वाले पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो माइनस साइन, अगर उस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है यहाँ पे जो लिखा है तो वो प्लस साइन आएगा। तो इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट फोर्थ कर लेते हैं, अगर आपके पास 360 है, साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा एंड tan 360 plus theta. So in this case you are again back in the first quadrant, 360 पूरा हो गया सर्कल एंड आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सो साइन जो है साइन का साइन ही आएगा, थीटा आएगा, 360 है ना तो इसलिए 180 और 360 पे टी रेशियो चेंज नहीं होगी तो ये सेम रहेंगे, साइन कॉस का कॉस आएगा और क्योंकि ऑल पॉजिटिव है तो सबका साइन जो है वो प्लस आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टी रेशियोज। अब यहाँ पे मैंने प्लस प्लस वाले करे हैं सारे डिस्कस, सिमिलरली यू कैन डू फॉर द माइनस साइन आल्सो। अगर माइनस साइन आ जाए तो मैं वो बता देती हूँ माइनस साइन का कैसे करना है। So if it is sin 90 minus theta cos 90 minus theta tan
90 माइनस थीटा। अगेन कोई फर्क नहीं है, अब पिछले केस में प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। अब 90 है तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा तो साथ में लगा ही देना। और 90 माइनस थीटा मीन्स ये 90 है माइनस थीटा मीन्स यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है तो प्लस। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 है तो साइन हो गया साइन थीटा, और साइन प्लस आएगा क्योंकि यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan 90 माइनस थीटा, tan का कॉट हो जाएगा एंड साइन प्लस आएगा। Similarly, you can check for the secant other t ratios also. Then second is if you have 180 degree, 180 minus theta cos 180 minus theta and tan 180 minus theta. So 180 minus theta means ये 180 यहाँ तक हो गया, minus theta means you are in the second quadrant and in the second quadrant only sign is positive and 180 है तो साइन का साइन ही आएगा और पॉजिटिव आएगा। कॉस जो है कॉस का कॉस रहेगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, टेन का टेन रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा 180 का हो गया। नेक्स्ट इज 270, तो 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा। तो 270 है साइन इज कॉस थीटा एंड 270 माइनस थीटा मीन्स यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तक 270 होता है, माइनस हो रहा है कुछ 270 में से, तो यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे tan सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन जो है वो नेगेटिव है तो माइनस माइनस आएगा एंड सिर्फ tan पॉजिटिव है तो tan का कॉट हो जाएगा और ये प्लस आएगा। फोर्थ इज अगर हम 360 ले लेते हो, 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा एंड tan 360 minus theta. So in this case 360 minus theta only cos is positive तो ये नेगेटिव आएगा, 360 है तो साइन ही रहेगा साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो हमने माइनस और प्लस दोनों के लिए कर लिया। अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इसको मैंने 90 प्लस 30 लिखा है। ठीक है, तो इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। जैसे सेम वैल्यू को जरूरी नहीं कि 120 अगर आपके पास है तो उसको 90 प्लस 30 स्प्लिट करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60। तो आपके पास 180 आ गया, 180 मीन्स साइन का साइन आएगा एंड 180 माइनस थीटा, ये थीटा है 60 means you are in the second quadrant and sin is positive in the second quadrant, तो ये प्लस साइन 60 आएगा। और आपको पता है साइन 60 इज रूट 3/2 एंड सिमिलरली cos 30 इज ऑल्सो रूट 3/2। सो साइन 20 जो है उसकी वैल्यू साइन 120 की वैल्यू यहाँ पे भी रूट 3/2 आई है और अगर आप माइनस 180 से कर लेते हो 180 माइनस थीटा से तो वहाँ पे भी रूट 3/2 आई है। सिमिलरली कॉस के लिए मैंने यहाँ पे 90 प्लस 60 लिखा है तो कॉस को आप कॉस 150 है, इसको कॉस 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। तो हर एक एंगल को लिखने के दो मेथड है, एक प्लस से एक माइनस से। तो 180 माइनस थीटा इट मीन्स कि ये आपका हो गया 180 है तो कॉस ही रहेगा और माइनस थीटा, थीटा है 30 एंड यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस साइन आएगा। सो cos 150 इज माइनस cos 30 और cos 30 जो है आपका अभी हमने करा है रूट 3/2 है तो माइनस साइन आ गया। सिमिलरली साइन 60 भी रूट 3/2 होता है तो सेम वैल्यू आ गई, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे स्प्लिट कर लो 90 प्लस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा स्प्लिट कर लो तो आंसर सेम आएगा। ठीक है जी।
So this is all about the T ratios quadrant formula for trigonometry part. I am hoping that you have understood what I have discussed. So if you have any query, you can comment in the comment box. So that is all. Thank you.